Good morning, everyone. As we all are gathered here for the event of Azadi Amrit Mahotsav, 75 years of Indian independence, myself Shivani Chauhan in front of you to present my views on Swami Vivekananda and Indian freedom movement. Swami Vivekananda, as name says, joyous with knowledge within, the one who finds joy in knowledge. Swami Vivekananda, born as Narendra Nath Datta on 12th Jan 1863 at Calcutta, at that time British India. He was a Hindu monk and disciple of 19th century Indian mystic Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda traveled in north and south of India, closely studied the life of people in every class of society, and found Indian people leading their life of ignorance and poverty. Few that were of elite class living in Western influence and merged in complete materialism. That was a painful to see a nation with great history and glory in such a dreadful condition that has forgotten its identity and glorious past. The concept of nationalism by Vivekananda was highly critical to British colonialism because he held that due to their rule, Indians lost their confidence, famines engulfed the land, farmers and artisans were destroyed to poverty, and hundreds of years of exploitation was running in every sphere of life, and that had given a death blow to India's rich traditions, learnings, and scientific pursuit. According to Vivekananda, the national regeneration of India would begin when people become fearless and start demanding their right. He started educating and enlightening the people. He conceived that education as a primary means of rebuilding Indian society. For him, education meant secular learning that built character and instilled human values in education. His ideals were based on value based education. With the mission to bring the change and to create consciousness among people, he participated in the world's first Parliament of Religions, Chicago 1893, represented India and Hinduism, where he emphasized on the balance between materialism and spiritualism and talked about tolerance and universal acceptance. Chicago's spiritual speech inspired the Indian mass to sacrifice their life for the interest of the country. His speech not only changed the way Western world looked at us, but also altered the perception of people of India towards themselves. In words of social reformer Charles Freer Andrews, Swami's intrepid patriotism gave a new color to the national movement throughout the India. After Swamiji's triumphant return from his first Western tour in 1897, opened a new era in history of nationalism in India. The Swami gave a call at Madras on 14th Feb 1897 to worship the motherland, alone exclusively for 50 years, and stop being a slave. Asking for the sacrifice for the cause of motherland, Swamiji pronounced freedom deserved only by the brave and the heroic.
Swami Vivekananda contributed in religious, political, and social awakening. Swami Vivekananda believed that spirituality of India was sedated, and before embarking a journey of political freedom or any other liberation, it is important to wake it up. He narrated verses from our ancient texts like Upanishads and encouraged people to not give up until you wake up enlightened and ready to achieve your goal. Swami Vivekananda's idea of self-determination became a political phenomenon which resonated with the agents of nationalism. He described corruption as a plague, which stops the nation's ability to develop. According to him, education was the only way out. Gandhiji's famous addressing to the poor as Harijans was inspired by Vivekananda's ideas of calling the poor as Narayanas. Swami Vivekananda served as one of the most inspiring intellectuals behind the Indian freedom struggle, either through the path of revolution or through the path of peace. At that time, everyone was inspired by Swami Vivekananda, such as Metamorphosis of INC, Indian National Congress under Lal Bal Pal, initiating the Swadeshi movement. Maulana Azad and others address and fight for the Hindu-Muslim unity. Netaji Subhash Chandra Bose forming the INA, Indian National Army. Hemachandra Ghosh was a revolutionary and met Vivekananda in 1901. He wrote that Swami Vivekananda instructed to them was that India should be free politically first. Foremost of all, have character. If you want to serve Mother India, be brave. He left a legacy in the area of creation of an individual and a nation. Development in an individual means development for the country. Swami Vivekananda's teachings are also very much relevant in today's world. His messages of religious tolerance, the path of compassion, brotherhood, humanity, and love for the country. He still motivates youth by his writing and saying. One of his saying is, all power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe that you are weak. Stand up and express the divinity within you. Thank you. Have a great day. Manpreet Kaur, श्री मनप्रीत नहीं है। उसके बाद बुलाना चाहता हूँ श्री शरद सूरी, उसके बाद पूजा मिश्रा, श्री पूजा मिश्रा, उसका सीरियल नंबर है 58, पूजा मिश्रा 53 सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जिनको कौन नहीं जानता, उनका एक कथन आज भी हमारे कानों में गूंजता है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने यह कहा कि मुझे गर्व है ऐसे देश से हूँ जिसमें धरती के सभी देशों को सताए गए लोगों को शरण दी है, चाहे अहिंसा अपनाने वाले महात्मा गांधी जैसे नेता हो या हेमचंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी नेता। सभी ने विवेकानंद की विराट देशभक्ति से बराबर प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने तो अरविंद घोष पर भी गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला और बाद में वह श्री आध्यात्मिक बन गए। स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा ही योगदान है भारत को स्वतंत्र कराने में। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने अमेरिका तक में हिंदू धर्म का परिचय दिया। ऐसे महान स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। बाद में वह स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसे महान स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी जी को बचपन से ही ईश्वर को जानने प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। उन्होंने पैदल ही सारे विश्व भारत की यात्रा तक की। सन 1 मई 1890 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 25 साल की उम्र में उन्होंने लोकलाज संसार को त्याग कर सन्यासी का वेश धारण कर लिया और वह साधु बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेदभाव न हो। वे एकता में विश्वास रखते थे, एकता में मानते थे। उनका मानना था कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
सबको एक समान मानना चाहिए, फिर वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। ऐसे महान पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। धन्यवाद। श्री कीर्ति शर्मा, नंबर 69, पंजाब यूनिवर्सिटी। सुप्रभात सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं कीर्ति शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से आज स्वामी विवेकानंद जी और उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है उसके बारे में आपसे अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। स्वामी जी एक भारतीय संत थे। वे एक संत होने के साथ साथ एक देशभक्त, एक वीर, एक लेखक, विचारक और एक मानव प्रेमी भी थे। ऐसे महान पुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध शहर कोलकाता में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन में उनके पिता श्री विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी ने उन्हें नरेंद्रनाथ के नाम से पुकारा। स्वामी जी वीरता प्रेमी थे तथा वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि यदि हम लोगों की वह तैराकी और कुश्ती का भी शौक रखते थे। वेद, उपनिषद तथा अपने हिंदू शास्त्रों की गहन समझ रखने वाले विवेकानंद जी का यह मानना था कि लोगों की सहायता करना भगवान की सेवा करने के समान है। स्वामी जी मन की शांति के लिए आध्यात्मिक गीत भी गाया करते थे। स्वामी जी को युवा अवस्था में एक बार भक्ति गीत गाते हुए रामकृष्ण जी ने सुना था। तभी उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें दक्षिणेश्वर आमंत्रित भी किया था। स्वामी जी को लगता था यदि सही मार्गदर्शन मिले तो एक व्यक्ति राष्ट्र का भला कर सकता है। उनके कथन थे, उठित जागृत प्रापय वरानी बोधन, अर्थात उठो जागो तथा तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया था तथा उनके गुरु ने उन्हें अंधकार से निकालकर उन्हें प्रकाश की ओर डाला। अपने गुरु के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता और श्रद्धा के कारण उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रसार चारों दिशाओं में किया, जिसके कारण उन्होंने भारत को बहुत करीब से देख लिया था अथवा जान भी लिया था। भारत के प्रति उनका प्रेम बहुत असीम तथा बहुत गहरा था। इसका एक किस्सा भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जब स्वामी जी अमेरिका से इंडिया आ रहे थे तब स्वामी जी जब जहाज में थे तब उनसे कुछ मिशनरीज ने पूछा था कि उनकी वेशभूषा को देखकर उनके मन में विचार आया कि उनको तर्क करने लगे सारे मशीनरी से उससे। तो उन्होंने, हालांकि स्वामी जी ने उनको काफी संतोषजनक उत्तर भी दिए, परंतु 2-3 दिन तक यह चलता रहा। उसके बाद उन्होंने स्वामी जी को भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए और स्वामी जी ने उनके कॉलर को पकड़ा और कहा, एक शब्द और मेरी मातृभूमि के बारे में और तुम पानी में मिलोगे। तो ये प्रेम था उनका भारत के प्रति। स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान भी दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी जी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उसमें आप सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। वह केवल एक संत नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। उनका हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसे मैं कुछ इस तरह बताऊंगी कि राजनीति में वो विश्वास नहीं रखते थे,
वह कहते थे मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। वो उनका जो योगदान था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो भी क्रांतिकारी रहे, जो भी लीडर्स रहे, तो वो किसी ना किसी रूप में स्वामी जी से प्रेरणा पाए हुए होते थे। और कई हमारे लीडर्स रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद जी के आह्वान का ही फल था। इसके बाद ऐसे कई लीडर्स और भी रहे, श्री अरविंदो जी, इसके बाद नेता सुभाष चंद्र बोस जी। भारत के लिए उनके मन में एक असीम प्रेम था और एक अलग ही चमक दिखती थी जब वह भारत के बारे में बात करते थे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन। और जो उपस्थित थे उसका नाम मनप्रीत और नहीं है, सरस्वती नहीं है। तो अब देखते हैं हिमांशु मदान। हिमांशु मदान, उसका नंबर है 6, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। वहां से आते हैं, उनको निकालिए से माइक पीछे Good morning, everyone. My name is Himanshu Madan, and today, having this wonderful opportunity, I would like to share my views on contribution of Swami Vivekananda towards India and its freedom movement. So, the fact is well known that Swamiji was a man of genius and a man of insight. He not only studies India's ancient glory to realize its destiny, but he also predicted some of the course of events that were about to take place in the world. The first one was the independence of India within the next 50 years. This was in the beginning of, we can say, 20th century. The reason was that Swamiji believed that once the Indian masses realize that they are being oppressed, they realize their goal and achieving it would not be a great task. So, and second, Swamiji predicted that there will be rise of working class in different parts of the world. For example, we can see the instances of Russian Revolution and the communist revolutions in China. But this was not his stance in case of India, because he believed that Indian masses are enlightened enough and they are non-violent, they are peace-loving, and that is why we see that the freedom movement in India was led by non-violent methods. The masses were not at all, we can say to some extent, but not majority was enlightened towards the non-violent methods. And Swamiji also said that whenever social change is accompanied by violence, it leads to the emergence of vested interest. So that was his take. And his third and final vision for the world was that he saw India emerging as a great world power that has never been achieved by any country during the past. So we can say, as Indians achieved their first two goals, they were perhaps tired achieving and they rested after achieving them. But the goal has not been achieved. The goal is to take India to the heights of greater prosperity and power. And today we are celebrating the Azadi ka Amrit Mahotsav. This should come as a Shanknath for us, because time calls us to regain our position as the spiritual leader of the world. And for this, we can also take inspiration from Swamiji's ideas himself. For example, the idea of Vedanta, when he says that back to Vedas, he says that degenerated India degenerated not because the ideas of Vedas and their rituals were bad. It was that they were not properly implemented and they were being corruptedly used by some people. So, anyone who explains this message and carries this glory of India would act as a great benefactor to the nation. And secondly, he focused on upliftment of masses, as he said that service to man is service to God. And in this path of progress, he always wanted to keep women on the upfront, because he always addressed, as we can see in the American Congress, the first sentences were, "My dear sisters and brothers of America."
Otherwise, they were always Americans were addressed as ladies and gentlemen. For the first time, he addressed Americans as sisters and brothers of America. And finally, he gave the message to combine the material prosperity of the West with the moral sensitivity of the Indians. He said that we should take from the world whatever it has, whether it be scientific techniques and everything they have, and in return, we should always give them what we have, that is our spiritual culture. So, that would be a proper cultural exchange between India and the world, and that could lead to the outflow of India's true ideas to the world. So, on this note, I would like to conclude by Swamiji's words itself that while the world searches for answer that whether love would prevail or war, whether peace would prevail or conflict, whether muscle would prevail or whether soft power, or whether hatred would prevail or good. But we Indians have already searched for our answers and should stick for it to the rest of the time. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Sri Vani Kumari, नहीं, Sri Richa, नहीं, Shivaji Kaur, नहीं, Priyam Singh, the number is 35. Guru Gobind Singh College. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Priyam Singh and I am from Guru Gobind Singh College for Women. And today I am going to present my views on the topic Swami Vivekananda and Indian Freedom Movement. We in the modern society often talk about our strengths and weaknesses. But long ago in 19th century, a boy was born in a middle class Bengali family of Calcutta, reached a divine stature in his life at an early age through his spiritual thoughts and simple living concepts. He said, strength is life and weakness is death. He also said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Can we guess by now who the boy is? Yes, we are talking about Narendranath Datta, who later went on to become Swami Vivekananda. The monk, a student during his college, was fond of music and sports like other young boys of his age, completely transformed himself into a person of exceptional spiritual vision. His works, Modern Vedanta and Raj Yoga, are today acclaimed all over the world. Life of Swami Vivekananda, fondly referred to as Swamiji, Vivekananda was born Narendranath Datta in an aristocratic Bengali family in British-ruled India on 12th January 1863. His famous speech at Chicago World Religion Congress in the year 1893 is remembered today. His father, Vishwanath Datta, was a renowned attorney at Calcutta High Court. Narendranath Datta regarded his mother, Bhuvaneshwari Devi, as a goddess. In his numerous books, he wrote that his mother was a divine spirit for him. Swami Vivekananda proudly upheld the greatness of Hinduism and taught the world its true essence of acceptance and tolerance. Sisters and brothers of America, the opening lines of the speech made the audience set up and applaud with a great zeal. Swami Vivekananda, the inspiration to youth of India. He became rather still the inspiration of the youths and to the pay homage to him. His birthday on 12th January is celebrated as National Youth Day. We even today learn the true aim of scriptures and austerity from his works. Guru Bhakti, how can we forget that to serve the poor, downtrodden people of the society, he established the Ramakrishna mission before the name of his Guru, Sri Ramakrishna Paramhansa.
Vivekananda and Western philosophy were like two sides of the same coin. This happened when Ramakrishna proved to him that he can visualize God like the way he can see Swamiji. This surprised him a lot. Like, as a person who had no traditional knowledge about science, literature, or the culture of India could visualize God. The very thought that awakened Swamiji was ethics and values. He realized we worship God for us, but his Guru worshipped God for the sake of mankind. Life and works of Swami Vivekananda, a man with in-depth knowledge of Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, and much more, used to believe that serving mankind is to serve God, and hence was the person who can say, God gave me nothing I wanted, but he gave me everything I needed. Happiness to him was a smile on the face of the poor. He was inspired right from the childhood due to her mother's religious nature and father's rational mind, who was then a lawyer. We all are aware of his knowledge and personality, but most of us are unaware that Swamiji was a brilliant singer. He used to enchant devotional songs on his own to keep his mind at a peaceful state. It's due to this ability he came across Ramakrishna Dev, who happened to hear young Narendra Nath sing a devotional song that impressed Paramhansa. At religious awakening, Vivekananda believed that spirituality of India was sedated and it was very important to wake it up before embarking on a journey of political freedom or any other form of liberation. At last, I would like to conclude. If Swamiji had been alive today, I would have been at him. I would been have. Thank you very much for your unwavering attention throughout this presentation. Thank you. Thank you. अब यहाँ पे जितने 15 पार्टिसिपेंट थे उनके स्पीच हम लोग सुन चुके हैं और मैं फिर व्यक्त करता हूँ कि समय बहुत हो चुका है और जिसको यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता है नहीं मिला है तो मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूँ और अभी जितने भी जो यहाँ स्पीकर थे उनको इंडिविजुअली हमने तो तालियों से अभिवादन किया था और कलेक्टिवली एक साथ सबको तालियों से अभिवादन करेंगे। थैंक यू आपकी तालियों की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अब मैं अब नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा उसके छोटे से रूप में आपके सामने रख देता हूँ, कोई बहुत छोट भी न जाए। नेक्स्ट सेशन के हमारे साथ उपस्थित रहेंगे श्री चंद्रशेखर तलवार, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी एनसीईओ पंजाब रेड सोसाइटी, वो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। प्रेसिडेंट की तरफ बधाई करके हमारे आश्रम के सेक्रेटरी श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज रहेंगे और उनके चीफ गेस्ट वगैरह करने के बाद फिर दो स्पीच रहेगी, फिर प्रेसिडेंट का स्पीच रहेगा, चीफ गेस्ट का पहले रहेगा, प्रेसिडेंट का, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे जजेस जो अभी बैठे हैं वो उस समय के दरमियान वो अपने लिए तय करेंगे और इस स्पीचेस होने के दरमियान वो तय होने के बाद फिर लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेक्शन जो आए हैं वो अनाउंसमेंट करेंगे, सब लोग आएंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाटर थैंक्स होगा, वेलकम होगा और उसके बाद लंच प्रसाद लेके सब लोग हम जाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेक्शन आया है उसके जो सर्टिफिकेट है वो साथ साथ में दे दिया जाए उसी समय, और जिस सिर्फ पार्टिसिपेंट्स किए हैं जिसने उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। वो विद्यार्थी लंच के बाद आसन के कार्यालय में संपर्क करें, उसको वहां पे सर्टिफिकेट दिया जाए। ठीक है, तो अभी मैं राजा जी को और उनको अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा और फिर वो देशभक्ति हमको सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
बहुत धन्यवाद श्री राजा जी को और उसके साथ कम्युनिटी संगठन दिए थे नाराज जी को बहुत धन्यवाद। अब ये सेशन शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं श्री रामकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ के सचिव श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं और उनके साथ ही हमारे आज के इस फंक्शन के चीफ गेस्ट श्री चंद्रशेखर तलवार जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कृपा करके अपना स्टेज पे स्थान ग्रहण करें। अब मैं आश्रम के सचिव श्रीमद स्वामी अनुपमानंद जी महाराज और जो यहाँ राजा जी जो है श्री डॉक्टर श्री राजा चटर्जी को निमंत्रित करता हूं कि आमंत्रित चीफ गेस्ट श्री चंद्रशेखर तलवार जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और उसका अभिनंदन करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आश्रम के सचिव श्रीमद स्वामी अनुपानंद जी महाराज को विनंती करता हूं कि वो अपना स्वागत प्रवचन अब हम द्वितीय और अंतिम भाग में आए हैं इस कार्यक्रम के और आज का हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखर जी तलवार IAS रिटायर्ड है। तलवार जी सुबह से लगभग 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। पहले कॉलेज हर एक कॉलेज को कांटेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आप मैंने जो दिखाया आपको इसको सब कॉलेज में दिया और उसके बाद इसका एक ये भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी था और 4 किताबें सब सॉफ्ट कॉपी सबको हमने दिया और उसके इससे और अपने आइडिया से बहुत सुंदर रूप से 15 जो जितना 75 एसेस आए थे और उसमें 15 यहाँ बोल सके क्योंकि हमने पहले बताया था 15 लोग यहाँ बताएंगे मतलब उनका अपना मंतव्य रखे हैं बहुत सुंदर रूप से क्योंकि ये जो स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वामी विवेकानंद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आपको कहीं वैसे सीधे सीधे नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद नेवर पार्टिसिपेटेड in Indian freedom movement, all of you know, but he was there. You know, there in Triveni Sangam we have 3 rivers. One is Ganga, another Yamuna. Saraswati is not appearing. Guptagamini it is. In the same way, Swami Vivekananda never participated in the freedom movement, but then his thought, love for the country, and tyaga and seva, renunciation, tyaga and seva, service, and also his message of self-confidence that inspired the our Indians, and his Swami Vivekananda gave back that self-confidence that we had lost during the British rule. And that is how, once we got our self-confidence, then Indians, our forefathers, they fought for the freedom. And you will find, right from Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Aurobindo Ghosh, and Sister Nivedita, and you will find a lot of them, scores of them, Swami Vivekananda had inspired them thought, their thought process. They believed in themselves. And ultimately their love for the country made them to fight for the freedom of the country, even sacrificing their life. So that is how Swami Vivekananda influenced. बहुत सारे बच्चे इसको बहुत सुंदर रूप से टच किए हैं इस विषय को, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि this was specially for this. You should think and write because you have come to an age, this age group where it is not just by heart and do something, copy and paste. That should not work.
It's something that you have to think and write. So that is how, and you have done very well. Now, let me introduce Shri C.S. Talwarji, who is the chief guest of this program. C.S. Talwarji, Shri Chandrasekhar Talwarji is a retired IAS officer of Punjab cadre. He has been top performer during his college days, and he has an MA degree in English and obtained training in administration and management from Duke University, USA. He joined Punjab Civil Service in 1986 and inducted into IAS batch 1997 batch IAS. He has 30 years of managerial administrative experiences in various capacities. He had been deputy commissioner, commissioner, and also secretary in the government, different departments, including finance. And also, he has been involved in different kinds of service activities of the government. And he has, after his retirement, he has been serving as the secretary Indian Red Cross Society, Punjab. पंजाब का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका सेक्रेटरी सीईओ सेक्रेटरी सो ही हैज बीन सर्विंग एंड ऑलवेज हैज बीन two things: one, service to mankind; another, influence of Swami Vivekananda on this. Just I would like to tell you one incident from his life. There was an important decision to make, and he had political pressure on him to make decision otherwise. That means to take a wrong step. And then what to do? And he had a book of Swami Vivekananda in his pocket and took out, and there Swami Vivekananda clearly says, believe in yourself and hold on to truths. When he read that, then he took the right decision, for which probably he had to face different kinds of this thing, but then he did not take a wrong step. And thus, he has been, you will find all through his life, inspired by Swami Vivekananda. He has studied his life and message, Swami's life and message, and imbibed his ideals in his professional life also. He is the founder, General Secretary of Punjab Vivekananda Study Circle, which has given the idea of Swami Vivekananda to thousands of youngsters and also professionals. And also he is associated with our Ramakrishna Mission, Vivekananda Kendra Kanyakumari, and other well-known organizations which are involved in service activities. He has visited more than 10 universities and hundreds of colleges and schools to motivate youth through man-making and humanitarian message of Swami Vivekananda. He has studied Swami Vivekananda very well. So I invite Talwarji to इसके ऊपर ये विषय के ऊपर रोशनी डालने के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ श्री तलवार जी से. मैं निवेदन करूंगा विनम्रता के साथ, जो दूर दूर बैठे हैं अगर पास आ जाएं तो इट विल बी वंडरफुल. आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट. थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है. मुझको आप नजर आते हैं, मैं आपको नजर आता हूं, तो you will I think feel better also, and I also feel better when you come close. है तो आपको इनकन्वीनियंस और मेरी थोड़ी शायद गुस्ताखी है जो मैं आपको उठा रहा हूं, आगे आने को कह रहा हूं. श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा स्वामी विवेकानंद के पावन चरणों में उपस्थित बहुत ही आदरणीय बहनों भाइयों, परम पूज्य स्वामी अंटुमानंद जी, द्वारकेश्वरानंद जी, ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल साहब, and young hopes of India who have participated in this wonderful competition organized under the aegis of Ramakrishna Mission. All the students, young boys and girls who have participated are very fortunate to get the blessings of Swami.
आज मुझको जो टॉपिक दिया गया है, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। इस स्टेज से पवित्र मेरे लिए और कोई स्टेज नहीं है। I feel immensely honored and humbled by this gesture of inviting me to speak from this platform to you. I come straight to the topic. अभी स्वामी जी बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, और हमारा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद। इसके बावजूद एक बहुत बड़े हिस्टोरियन, एक नहीं अनेक, एक जादूनाथ सरकार, उन्होंने डिक्लेयर किया that the spiritual father of Indian national freedom movement is Swami Vivekananda. Spiritual father. एक आरसी राजगोपालाचार्य, हमारे पहले गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आजादी के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, बट फॉर विवेकानंद we would never have one freedom. अगर विवेकानंद होते तो हम आजाद ही नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात। तो फिर ये दो बातें कैसे हैं? स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया फ्रीडम मूवमेंट, और उधर जादूनाथ सरकार कह रहे हैं ही इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम, और राजगोपालाचारी कह रहे हैं कि बट फॉर विवेकानंद वी वुड नॉट हैव वन फ्रीडम। अब ये विषय है जो मुझे बड़ा ही एक रोचक भी लगा, और वी शुड नॉट फॉरगेट अवर हिस्ट्री। कहते हैं ना, दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इतिहास से जो सीखा है, और अपने महापुरुषों को याद करना, अपनी प्रेरणा को याद करना, बार बार याद करना। जितनी बार याद करोगे उतनी ही प्रेरणा उसमें से पाओगे। एक लड़का था, उसने, जैसे अब कॉमनवेल्थ गेम चल रही, ओलंपिक्स में रेसलिंग में या बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। तो उसने कहा कि आपने गोल्ड मेडल कैसे जीता, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज टू होम यू गिव क्रेडिट फॉर दिस? वो कहता, आई गेव इट टू माय अंकल। उस प्लेयर से पूछा, इज योर अंकल ए रेसलर? कहता, नो नो, ही हैज नेवर रेसल्ड। उसने कभी पहलवानी नहीं की। तो फिर आप कहते उसी के कारण मैं बना। तो कहते, जब मैं बच्चा था, मेरे अंकल थे, वो पहले दिन से मुझे कहते थे, इसे सुबह उठाओ, इसे योगा कराओ, इसके मसल्स बनाओ, इसको तगड़ा करो। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कोच के पास भेजा, और कोच ने सिखाया, नाउ आई एम वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका? कोई भी गेम खेलनी है तो उसमें सबसे प्रथम आवश्यकता किस चीज की है? मसल्स की, सेहत की, स्किल की, योग्यता की। अब फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चाहिए नौजवानों में? सबसे ज्यादा जरूरत है आत्मविश्वास, स्वाभिमान, fearlessness and love for freedom and love for strength। ये 5 चीज। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास हमें आया कहां से? इंडियंस में।
एक राइटर ने लिखा है 15 अगस्त 1947 का जन्म 11 सितंबर 1893 को। जो एक स्पीच शुरू में, उसके बाद कई स्पीचेस हुई थी विवेकानंद, वर्ल्ड स्टेज पर आदमी खड़ा होकर ऐसे देश से जा रहा है जो गुलाम है, जो दुनिया के कदमों के नीचे कुचला जा रहा है, ऐसे धर्म से जा रहा है जिसे लोग सपेरों का धर्म कहते हैं, अंधविश्वासियों का धर्म कहते हैं। मैं कई बार बच्चों के साथ बच्चों की भाषा में बात करता हूं, तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम आपके बाप होते हैं। वो वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा होकर कहता है रिश्ते में तो हम आप सबके माई बाप होते हैं। वी आर द मॉम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप सब तो हमारे लिए बच्चे हो। वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होकर कहता है आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज टॉट द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया के गुरु हैं, उस्ताद हैं, द आइडियाज ऑफ टॉलरेशन एंड एक्सेप्टेंस। और 4.5 मिनट की स्पीच में दुनिया को हिला देता है। अगले दिन सारे अमेरिका के न्यूज़पेपर्स, सारे पत्रकार, सभी की यूनानिमस ओपिनियन, द चैंपियन स्पीकर वाज विवेकानंद एंड द आइडियाज विच ही गेव place the Indian philosophy, Hindu philosophy, the highest and the profoundest of all others. वो जो मैसेज जब गया, 7,000 आदमी उठ के खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, दैट स्टैंडिंग ओवेशन वाज फॉर इंडिया। अब स्कोर सचिन करता है 4 रन में, तो इंडिया का स्कोर इतना। वो जो इंडिया की रिस्पेक्ट, एक ही आदमी 30 वर्ष के संत ने लड़के जो भारत को दिलवाई, वो जब मैसेज इंडिया में पहुंचा, इट सर्व्ड एज ए टॉनिक फॉर वी इंडियंस। जो हिंदुस्तानी अपने आप को होटलों के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, और हम अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे थे। जब ये मैसेज आया कि वी आर द चैंपियंस, वी आर द ग्रेटेस्ट फिलॉसफी, द ग्रेटेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट मॉडर्न एंड द मोस्ट एंशियंट, तो ये कॉन्फिडेंस जब इंडिया को मिला, तो वहां से सबसे पहले आत्मविश्वास आया, स्वाभिमान। विवेकानंद बड़े स्वाभिमानी थे, हम्बल थे, विनम्र थे, पवित्रता की मूर्ति। लेकिन स्वाभिमान क्या होता है ये भी उन्होंने सिखाया एक संत ने भारत में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। कहते हैं गाड़ी से जा रहे थे, जब वो फेमस, किसी ने उनको फर्स्ट क्लास की टिकट ले दी। तो सन्यासी का क्या होता है, फर्स्ट क्लास की टिकट, प्लेटफॉर्म पर भी सो जाते हैं, महल भी सो जाते हैं। यही कुछ विवेकानंद। तो ट्रेन में जा रहे हैं, सामने एक अंग्रेज बैठा। अब अंग्रेज को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक हिंदुस्तानी उसके सामने बैठा, बात तो नहीं करता था, लेकिन इन्होंने एकदम भांप लिया इस मैन की जो स्नोबरी, जो इसका अहंकार है, अपने आप को सुपीरियर समझने का। उसने कहा तो इनको कुछ नहीं। स्वामी जी जब वॉशरूम गए, अब बंगालियों की आदत होती है, अब सारे इंडियंस की होती थी पहले, कभी एंटर करते जूता बाहर उतार देते थे, इवन वॉशरूम से बाहर ही उन्होंने अपने जूते उतार। तो जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो देखे स्वामी जी के जूते नदारद, गायब थे। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अंग्रेज, वो भी बाथरूम गया। अब अंग्रेज को आदत होती है कोट उतार के जाने की, तो उसने कोट उतारा, बाहर किल्ली पे लटकाया। थोड़ी देर बाद आया तो कोट गायब था।
अब अंग्रेज ने पूछा, जेंटलमैन, अब बोला नहीं तो अंग्रेज के साथ 3 घंटे 10 घंटे सैर करो, वो बोलता ही नहीं, स्टिफ अपर लिप। अमेरिकन एकदम खुल जाते हैं, इंडियंस तो 1 मिनट में खुल जाते हैं, पंजाबी तो 1 सेकंड में खुल जाते हैं। परोठा खोल के कहते हैं आप खाओगे। तो वो अब अंग्रेज बोला, जब कोट वाज मिसिंग, जेंटलमैन हैव यू सीन माय कोट, वेयर इट हैज गॉन? स्वामी जी ने कहा, यस सर, आई हैव सीन योर कोट, इट हैज गॉन टू सर्च फॉर माय शूज। यानी स्वाभिमान। उन दिनों में भी शिप में भी एक ने गलत बात कही तो इन्होंने गले से पकड़ा। तो इनको स्वाभिमानी विवेकानंद, इंडियंस को सिखाया स्वाभिमान एक संत। अब एक मैं बीच की बात बीच में एक यहां लेके जा रहा हूं कि ये इनको, मैं नहीं कहता कि स्वामी वक्त देशभक्त थे। जब उनसे पूछा गया कि व्हाट इज योर मैसेज, तो उन्होंने कहा लव इंडिया। पर फिर भी मैं कहता हूं देशभक्त नहीं थे। स्वामी जी देशभक्तों के देशभक्त। स्वामी जी वो शख्सियत है जिनको पढ़ के हजारों नौजवान देशभक्त बन गए, बड़े से बड़े देशभक्त। किनको कहोगे? फादर ऑफ द नेशन गांधी जी। गांधी जी कहते हैं, आफ्टर रीडिंग विवेकानंद, माई लव फॉर इंडिया हैज इंक्रीज्ड 1000-fold। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, एक बार उनको बोला स्वामी जी पर बोलिए, कहते मेरी जुबान इस काबिल नहीं है कि इस जुबान से विवेकानंद का नाम भी ले सके। सुभाष बोस गांधी जी के इक्वल गिनते हैं, डिफरेंट लाइन थी, इक्वल। उनसे कौन देशभक्त होते? सुभाष की कहानी बच्चों को थोड़ी सी बता देना चाहता। कॉलेज में पढ़ते थे जब, एक दिन अंग्रेजी के प्रोफेसर ओटन थे वहां उस कॉलेज में, उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। कहते मेरे साथ घटना हुई। कहते क्या घटना हुई? कहते मैं कॉलेज की क्लास लेकर शाम को जब बाहर जाने लगा तो गेट से थोड़ी दूर 5 लड़के खड़े थे। उनमें से 5 लड़कों में से 4 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। एक लड़का बोला था प्रोफेसर साहब को पकड़ लो। एक लड़के ने मेरी एक बाह पकड़ी, दूसरे ने दूसरी, एक ने एक टांग, दूसरी, चारों ने 2 बाहें 2 टांगें पकड़ी। और वहां जो कॉलेज के बाहर गंदा नाला था, पानी उसमें जा रहा था, कहते चलो प्रोफेसर साहब को स्नान कराएं। तो लड़कों ने उनके ऐसे डुबकियां लगाई, 1 2, और फिर बोला प्रोफेसर साहब बोलिए, इंडिया ग्रेट है। इंडियंस को आप जो डर्टी वर्ड्स बोलते हैं, बोले मुंह से इंडियंस आर ग्रेट। जब तक वो प्रोफेसर बोला नहीं, उन्होंने उनके स्नान कराते। ये प्रोफेसर ओटन ने शिकायत लगाई है प्रिंसिपल को अपने कॉलेज के कि 5 लड़कों ने ऐसा किया। तो कहते वो लड़के कौन थे? कहता बाकियों को तो मैं जानता नहीं, एक को जानता। कौन? सुभाष। कौन सुभाष? जो फर्स्ट आता है सारी यूनिवर्सिटी। यस, वही सुभाष। बुलाया तो सुभाष ने सीधा कह दिया, हाँ जी, ही वॉज इंसल्टिंग माई कंट्री, तो वी हैड टू टेल हिम व्हाट इज नेशनल प्राइड। कॉलेज डेज की बात है जो सुभाष ने किया, और सुभाष को एक्सपेल कर दिया 2 साल के लिए। उन्होंने अकाल पीड़ितों की हेल्प की। फिर आईसीएस का एग्जाम उन दिनों सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था, कई साल तैयारी करते थे। आईसीएस का एग्जाम दिया, 4 महीने रहते थे सिर्फ। पहले अटेम्प्ट में टॉप पोजीशंस में सुभाष बोस। और सुभाष बोस को जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला आईसीएस का, तो सुभाष बोस ने उसका इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। I have read letters exchanged between सुभाष बोस and his father. उनके पिताजी कहते हैं सुभाष बोस के, बेटा कुछ दिन तो आईसीएस की सीट पर बैठ के दिखा दे। तो फादर को लिखते हैं, फादर आपके सेंटीमेंट्स के लिए अगर मैं 6 महीने बैठूं आईसीएस बन के
तो क्या मैं 6 महीने इंडिया की आजादी लेट करवा दूं? इस तरह के देशभक्त। और वो सुभाष बोस क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके शब्द सुन के। जो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, द वेरी मेंशन ऑफ द वर्ड विवेकानंद, वेरी मेंशन sends the whole all the cells of my body into raptures. मेरे शरीर का एक एक रोम रोमांचित हो जाता है सिर्फ नाम सुनकर विवेकानंद। If Vivekanand comes before me, I would be rolling at his feet. विवेक सुभाष कह रहे हैं, and I declare to the world, he is my mentor, he is my inspiration, he is my maker. अब सुभाष बोस को जिसने बनाया, जैसे मैंने वो अंकल की उदाहरण दी है, तो सुभाष बोस खुद कह रहे हैं मुझे बनाने वाला, मेरी इंस्पिरेशन, मेरा मेंटर कौन है? और फ्रीडम फाइटर उससे बड़ा है कोई? शहीद आजम भगत सिंह जेल में थे। कई लोग कहते हैं नास्तिक थे, कोई कहते आर्य समाजी थे, कोई कहते कम्युनिस्ट थे, अलग अलग जो भी थे। कुलदीप नैयर ने किताब लिखी है उन पर, Once we were together, Kuldeep Nayyar and myself in the same function. I was presiding, he was chief guest. He shared with me that Bhagat Singh wrote a letter from prison to his revolutionary friends कि मैंने तो शहीद हो जाना है, अब देश मेरा आजाद भी होगा। मैं भारत के सारे नौजवानों को ये मेरी प्रार्थना है कि आजादी के बाद भी विवेकानंद को मत भूलना। अरविंदो घोष वो भी आईसीएस सेलेक्ट हो गए थे, उन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया। उन्होंने वो क्या था, अलीपुर जेल में थे बाद में। वो जॉर्ज पंचम थे शायद, कौन किंग आए थे, उनके जुलूस पर बम फेंका था, एक रेवोल्यूशनरी हो गए थे अरविंदो घोष। आईजी ने, बंगाल के आईजी, उन दिनों आईजी होते थे, यहाँ चट्टोपाध्याय जैसा डीजीपी साहब भी बैठे हैं, तो उन दिनों आईजी होता सबसे बड़ा रैंक। तो आईजी बंगाल ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि जो अरविंदो घोष और इनके साथियों के घरों पर हमने छापे मारे, रेड्स किए, और वहां से बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला, विस्फोटक मटेरियल। वो कहते क्या मिला? पत्रकारों ने पूछा क्या मिला, तो उसका जवाब था स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर मिला। लिटरेचर ऑफ स्वामी विवेकानंद was considered so explosive. It was such an inspiration for the freedom fighters कि अंग्रेजों ने उससे भी डरते थे। उनकी लिखी हुई लाइनों में पंडित नेहरू कहते हैं, there is a flame and a fire in each word which Vivekananda has written. It can put life in a dead body. मुर्दा में भी जान डालने की क्षमता है विवेकानंद में, उसके ऐसे ज्वाला से। एंड द वर्ड्स ऑफ ग्रेट विजडम, फायर एंड फ्लेम कोई फुलिश फायर एंड फ्लेम नहीं है, फायर एंड फ्लेम फुल ऑफ विजडम। पंडित नेहरू कहते हैं, आई हैव रेड ईच एंड एवरी वर्ड विच विवेकानंद हैज रिटन और स्पोकन एंड इज अवेलेबल एंड आस्क्ड हिज डॉटर टू रीड हिम। एक से बढ़ के एक रेवोल्यूशनरी, रोमा रोला, फ्रेंच नॉवलिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, ऑटोबायोग्राफर है वर्ल्ड लेवल के। उन्होंने बायोग्राफीज लिखी है, रामकृष्ण विवेकानंद की लिखी। वो लिखते हैं, hundreds of young men of India kissed the gallows, with God's name on their lips and Vivekanand in their pockets. यानी जो शहीद हो रहे थे उनकी इंस्पिरेशन भी कौन थे? विवेकानंद।
अब कहो क्या कह दिया विवेकानंद ने ऐसा? मैं और कुछ एक शब्द बताता हूं विवेकानंद, शायद एग्जैक्ट कोट ना करूं, लगभग एग्जैक्ट होंगे. स्पिरिट विल बी से, आई विल बी करेक्टेड बाय स्वामी जी वेयर आई एम रॉन्ग. उनका स्टाइल, विवेक, यूथ पर उनका भरोसा विवेकानंद का. माई फ्रेंड्स, माई कंट्रीमैन, माई चिल्ड्रन, जस्ट सी हिज वर्ड्स. माई फ्रेंड्स, माई कंट्रीमैन, माई चिल्ड्रन, दिस ग्रेट नेशन इज लाइक ए शिप. एक ऐसे जहाज की तरह, एक ऐसी किश्ती की तरह है मेरा देश, जिस किश्ती पर बैठकर हमने हजारों सालों से पार पाए. लेकिन आज उस भारत की किश्ती में, राष्ट्र रूपी किश्ती में छेद हो गए हैं. Some holes have sprung up in the boats. तो हम क्या करें? Should we stand on the boat and shout curses? जैसे आज लोग, कई लोग कहते हैं भारत तो जी साडा, मजाक में गए मेरा भारत महान. मजाक में कई तो रियली स्पिरिट से कहते हैं, कई मजाक. भारत की कोई बुरी बात है, अच्छी बात समाज हो गई, उसको कहना देखो जी मेरा भारत महान, इसमें कितने जुल्म होते हैं. तो उन्होंने कहा कि अपने देश को बुरा नहीं कहना. होता क्या है, हम में से कोई नौजवान फ्रांस हो जाता है, अमेरिका हो जाता है, आके कहता है कि जी वहां बड़ी तरक्की हुई है, वहां की सड़कें देखो. वो कहते तेरे प्यो ने बनाई सड़क, उन्होंने बनाई, इतने तू बना. सो विवेकानंद gave this message what 20 years ago, कि never curse your motherland. अपनी मां को गाली निकालने के बराबर है भारत के खिलाफ कोई बात करना. एंड विवेकानंद सेज, अपने दिमागों को निकाल दो, अपने दिलों को निकाल दो. टेक आउट योर ब्रेन्स, टेक आउट योर हार्ट्स. और उन ब्रेन और हार्ट के साथ उन छेदों को भर दो, जिन छेदों की वजह से भारत की किश्ती डगमगा रही है. ये शब्द है विवेकानंद. Fill up the holes. My friends, my countrymen, my children, I love you, but I wish that you should die. विवेकानंद का, I'm quoting विवेकानंद. मुझे बहुत प्यार है नौजवानों आपसे, और मैं चाहता हूं आप शहीद हो जाओ. Only he lives who lives for others. अब कुछ आपने जन्म लिया है तो कुछ बड़ा काम कर जाओ, डू समथिंग ग्रेट. नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह लाखों लोग रोज पैदा हो रहे हैं और लाखों रोज मर रहे हैं. अब ऐसी बातें सुनकर कौन नहीं जाता. जब मेरे देश का एक व्यक्ति भी भूखा है, तब तक मैं हर भारतवासी को गद्दार समझता हूं. देखिए लाइन है, जब मेरे देश का एक बच्चा भी भूखा है तो मेरी दृष्टि में वो सारे भारतवासी गद्दार है, खासतौर पर पढ़े लिखे भारतवासी, क्योंकि सारी जिम्मेवारी पढ़े लिखों पर होती है. आपको कहते नींद कैसे आ जाती है? Why don't you spend sleepless nights when billions of your brothers and sisters are starving? विवेकानंद को नींद नहीं आती थी. एक संत, ऐसा संत, कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, भारत के बच्चों के लिए जो सड़कों पर, बहनें जो सड़कों पर मजदूरी करती हैं, उनके लिए विवेकानंद रोते थे. इस तरह का संत हुआ नहीं दुनिया के इतिहास में, जिसमें बेस्ट ऑफ ईस्ट हो, बेस्ट ऑफ वेस्ट हो. पश्चिम में जाकर उनको कहते हैं आपने हमें क्या पढ़ाना है, हम आपको पढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है. पूर्व में आकर हमको कहा अरे कुछ साइंस भी सीखो, टेक्नोलॉजी भी सीखो. सी हाउ द नेशंस हैव मेड ए मार्च, यानी नेशनल अवेकनिंग.
उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं, उनसे बड़ा इंटरनेशनलिस्ट कोई, उससे बड़ा साइंटिफिक, ये कहते साइंटिस्ट अमंग सेंट्स एंड ए सेंट अमंग साइंटिस्ट। अब जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये जो आइडियाज होते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर जब मैं आईएएस एग्जाम में अपीयर हुआ तो कोचिंग लेने गया, वो बड़े तुरंदर थे विद्वान हिस्ट्री के जो मुझे पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन पर जब सवाल आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप में से कई इतिहास के बच्चे होंगे, नहीं तो सुनी होगी, तो आईएएस के एग्जाम में देकर बाहर आकर कहता मैंने 14 कारण लिख दिए, 10 कारण लिख दिए। वहां गरीबी थी, वहां किसानों को सैलरी कम मिलती थी, मजदूरों के साथ ये था, पादरी ये करते थे, वगैरह वगैरह। तो वो प्रोफेसर कहता कि नंबर मिलेंगे 100 में से 20, क्योंकि असली कारण तो आपने बताया ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने कहा बताइए जी, मैंने तो अभी तैयारी कर रहा था। वो कहता आप लिखोगे कि किसानों की हालत बाढ़ी थी, उसने देखना है पोलैंड में, साथ में प्रशिया में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, उनमें उससे भी बुरी थी कंडीशन किसानों की, मजदूरों की उससे भी बुरी थी, सैलरी उससे भी बुरी थी। लेकिन रेवोल्यूशन फ्रांस में आया तो कहता वो कारण जिसने लिखा और उसको अंडरलाइन किया कि दैट वाज द स्पेक्ट, उसके नंबर आएंगे 100 में से 80। वो कारण क्या था कि वहां पर विचारक थे, देयर वर थिंकर्स इन फ्रांस, जिन्होंने परसेप्शन दी कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेशन से रेवोल्यूशन नहीं आती, परसेप्शन ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड से आती है। दैट इज द रिप्लाई। तो इंडिया में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी स्पिरिचुअलिटी को हमसे बड़े से बड़े संत, हम रोज कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं महापुरुषों, कितने महापुरुषों ने बताया कि सारी आध्यात्मिकता का सार एक शब्द में पिरोया जा सकता है। अगर किसी ने पढ़ा है, जब बताया मुझे बताया, विवेकानंद ने बताया, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, सारे वेद उपनिषद पढ़ने के बाद एक ही शब्द मेरे कान में गूंजा, वो क्या है? फियरलेसनेस। अगर आप फियरलेस नहीं हुए तो आप आध्यात्मिक कहां से हो गए? And fearlessness is the first requirement of being a revolutionary. This is the concept given by Vivekananda. The entire aim of religion, ये रिलीजन को डिफाइन किया, इस तरह से किसी ने नहीं किया। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, every man, every soul is potentially, every man, human is potentially divine. The aim of religion is to manifest this divinity. Do it through work, worship, knowledge, psychic control, through any one, more or all of these, and be free. सारी थीम विवेकानंद की लाइफ की है, हाउ टू बी फ्री, एंड दैट कंसेप्ट, ये जो हमारे थिंकर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, सुभाष, गांधी, नेहरू, ये सबको ये कैच हुआ कि हाँ, सारी स्पिरिचुअलिटी फियरलेसनेस है, सारी स्पिरिचुअलिटी फ्री होना है, फ्रीडम फ्रॉम एनी फियर। और सारी थीम सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। किसी और संत ने कहा इन सो मेनी वर्ड्स, सटल इंप्लिसिट ढंग से सारा कुछ है शास्त्रों में, लेकिन उसको अंडरलाइन करके क्लैरिटी के साथ एम्फेसाइज करना और लोगों तक पहुंचाना, नौजवानों तक काम, ये था। तो ही बिल्ड द नेशन, ही अवेकन्ड द नेशन। हो गया जी टाइम में। तो इस तरह से मेरे पास बातें बहुत है,
लेकिन समय नहीं है। आपके पास तो अब हो गया, आप तो चाहोगे मैं बोलूं, मुझे लगता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की जो रोल इन फ्रीडम मूवमेंट है, बस यही है, ही वॉज द स्पिरिचुअल फादर। हालांकि उन्होंने सिस्टर निवेदिता को मना किया था कि आपने राजनीति में नहीं जाना, लेकिन सिस्टर निवेदिता ने पहला इंडियन नेशनल फ्लैग, अंग्रेज ने भारत का झंडा नहीं बनाया था, यूनियन जैक को सलाम करते थे। यहाँ पे बरादरी या जाटों का ये झंडा, सिखों का ये झंडा, राजपूतों का ये झंडा, इस तरह झंडे बनाए थे। इंडिया का कोई फ्लैग नहीं बना। फर्स्ट नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय सिस्टर निवेदिता। और विवेकानंद कहते थे, सारे भारतवासियों थोड़ी देर के लिए सारे शास्त्र परे रख दो, माला पर एक ही नाम जपो, मदर इंडिया, मदर इंडिया, मदर इंडिया, मदर इंडिया। और उन्होंने फोरकास्ट किया था कि बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी आई सी मदर इंडिया सिटिंग ग्लोरियसली sitting on the throne of glory, and that glory will be much more than ever in the past. और भारत का युग शुरू हो चुका है। इंडिया इज emerging. We are a power, not only armed forces, we are an economic power, we are an intellectual power. It is said all over the world, Chinese workers and Indian minds have overwhelmed the world. दुनिया के 12 बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनमें से 7 के सीईओ भारतीय है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की है। हो सका तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर 6 देशों, और नासा से स्पेस जाता है साइंटिस्टों का, तो कैप्टन भारत की बेटी कल्पना चावला है। दूसरा स्पेस जाता है तो सुनीता विलियम्स है। सुनीता साथ में गीता और गणेश साथ लेके जाती है और तिरंगा साथ लेके जाती है, और वहां से 15 अगस्त को मैसेज इंडियंस को करती है कि आई एम प्राउड टू ऑफ माई इंडियन ओरिजिन। तो ये है, भारत इज emerging and the forecast was done by Vivekananda. Confidence and the will to fight was given by Vivekananda. Thank you. मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ श्री श्री चंद्रशेखर तलवार जी का। उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके इतने व्यस्त जीवन में वो हमारे लिए इतना समय निकाल के हमारे साथ उपस्थित हैं, इसलिए भी मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं श्रीमद स्वामी अनुपानंद जी महाराज को विनती करता हूँ कि तलवार जी को स्वामी विवेकानंद का फोटो और एक किताब से उनका अभिवादन करें। अब मैं जस्टिस एस.एन. अग्रवाल जी, हमारे मैनेजिंग मेंबर है, उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में रेवोल्यूशन का जो ये है उसके बारे में एक किताब लिखा है, उसके बारे में 5 मिनट आपको बोलेंगे, और जो भी प्राइज विजेता है उन सबको एक एक किताब मिलेंगे। मानयोग स्वामी जी, मानयोग चीफ गेस्ट आज की सभा के, मानयोग जजेस, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, तलवार साहब के बयान के स्पीच के बाद मेरे में हौसला नहीं पड़ता कि मैं कुछ इसके बारे में बोलूं, लेकिन फिर भी मतलब जो मेरे मन में है वो बातें मैं आपसे जरूर करना चाहता हूँ। एक तो मैंने ये पढ़ा था
कि जब स्वामी विवेकानंद गए वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, तो इनको सिर्फ 2 मिनट मिले थे। जो बाकी पहले अंग्रेज थे जो स्पीचेस कर रहे थे अपने रिलीजन के बारे में, वो यही कह रहे थे जैसे एक विद्यार्थी ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लोग इसको अडॉप्ट हो गए थे। पर अपने स्वामी जी ने जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो 2 मिनट तो तालियां बजती रही। जो 2 मिनट उनको बोलने के लिए दे थे वो 2 मिनट तालियां बजती रही, देन फ्री टाइम उनको मिल गया। और दूसरा जो इंसिडेंट मैंने पढ़ा है वो ये था कि उन्होंने सब धार्मिक बुक्स जो थी, जो वेदास थे, वो सबसे नीचे रखे हुए थे और उसके ऊपर दूसरी क्रिश्चियन वगैरह का या दूसरे धर्मों के बुक्स रखी हुई थी। तो किसी ने उनको, स्वामी जी को परेशान करने की खातिर ये कहा कि देखो जी, आपके वेदा तो सबसे नीचे रखे हुए हैं, बाकी धार्मिक किताबें सारी ऊपर हैं। वो कहते स्वामी विवेकानंद जी का देखो, वो कह रहे भी नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेदास जो है ये सारे धर्मों की माता है। ये सारे धर्मों को जो हुए हैं वो इनके हैं, इनकी वजह से हुए हैं। और तीसरा जो आजादी का अमृत महोत्सव, ये 12 मार्च 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने स्पीच करी थी, जिसमें पहली बार उन्होंने रेवोल्यूशन को ट्रिब्यूट्स पे करे थे। तो ये 2 मूवमेंट चल रही थी, एक तो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट मूवमेंट, पर जो अपने रेवोल्यूशनरी पैट्रियट्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कहते थे जब तक इनको झटका ना दो तब तक ये हमारे को आज़ादी नहीं देंगी। और मैं मतलब जैसे और 1857 से लेके आज़ादी तक अपने रेवोल्यूशनरी पैट्रियट्स होते रहे हैं, लेकिन जो मतलब एक मैं आपको पढ़ूंगा कि 15-16 साल का लड़का करतार सिंह सराभा वो अमेरिका में पढ़ाई के लिए गया था। तो वहाँ फिर जब लाला हरदयाल पहुंचे तो उन्होंने वहाँ गदर पार्टी बनाई, जिसके रसाले उन्होंने सारे वीकली जो सारे विदेश में रहते थे भारतीय, उनके पास वो पहुंचते थे। तो उसकी पंजाबी ट्रांसलेशन फिर वो करते थे, वो जो करतार सिंह सराभा, वो करते करते वो कहते रहते, गाते रहते साथ, और साथ ये कहते रहते सेवा देश की जिंदगी वो बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखालियां ने। फिर उन्होंने मन बनाया कि 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वार पहली होने वाली है, ਆਪਾਂ भारत जाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ांगे। उस वेले फिर सारे ਜਿਹੜੇ भारतीय सी उन्होंने आना शुरू करता भारत ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई लड़न की खातर। लेकिन अंग्रेजों ने फिर उन्होंने कलकत्ते ही काफ़ी गोलियां गालियां मार के काफियों को मारता, काफ़ी मिसिंग हो गए, काफ़ी जख्मी हो गए। लेकिन गदर पार्टी के बहादुर जवान और भी होर रस्तियां के राही भारत में दाखिल हुए और उन्होंने आज़ादी की लहर का मूवमेंट चलाई अपनी। उन्होंने कहा भी आपां कोई लीडर चाहिए है जो आपां गाइड करे भी आपां हाउ टू फाइट फॉर दी इंडिपेंडेंस। तो फिर उन्होंने रास बिहारी बोस को इनवाइट किया, विष्णु पंगले को भेजा उनको बुलाने के लिए, रास बिहारी बोस को। उन्होंने आके फिर अंडरटेक करा। उन्होंने ये सोचा कि हम 21 फरवरी को, ये डेट फिक्स कर दी भी 21 फरवरी 1915 को हम सारी जो अपनी बटालियंस है आर्मी, जिसमें इंडियन आर्मी मैन हैं, हम उनको जाकर जागृत करेंगे कि आप बोर्डों की सेवा करने छोड़ दो, अब भारत के साथ लड़ो। तो जो अंग्रेजों में बड़े चलाक थे उन्होंने अपने बिच जजेस और उपाधियों बिच जो उनके अपने जो चहेते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को तारीख बता दी कि ये तारीख को वो करेंगे। तो जब इनको पता चला, इन्होंने डेट चेंज करके 19 फरवरी 1915 को रख दिया। वो भी अंग्रेजों को पता चल गया और जिसके कारण सारे अपने जो गदर पार्टी के लीडर थे वो सारे पकड़े गए। और करतार सिंह सराभे की उम्र उस वक्त बहुत 19 साल के करीब थी जब अंग्रेज इसको डेथ सेंटेंस दे दी थी। और वैसे तो डेथ सेंटेंस 24 गदर पैट्रियट्स को दी थी, लेकिन जब उन्होंने एग्जामिन करवाया तो उन्होंने सिर्फ 7 को रखी। 7 में उन्होंने करतार सिंह सराभे को
लोअर में रखा कि इसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी एज थोड़ी है। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि इसका रोल बहुत जबरदस्त था, इसीलिए इसको फांसी मिलनी चाहिए, तब फांसी के तख्ते से जान से पहले वो देखो क्या कह रहा है, मतलब देशभक्ति इतनी जबरदस्त थी रेवोल्यूशनरी पैट्रियट्स में, आप हैरान हो जाओगे। वो कहते भारत हमारी माँ है और हम इसकी सेवा करना हमारी जिम्मेवारी है। वो ये कह रहे जब जाता हुआ अपने फांसी के तख्ते पे जाते हुए अपने दूसरे साथियों को ये पैगाम देके जाता है, यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का है हिंदुस्तान मेरा। मैं हिंदी, ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फिरका, यही खानदान मेरा। मैं इस उजड़े भारत के खंडर का एक जरा हूँ, यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशान मेरा। कदम लूं मादरे भारत तेरे माँ उठते व बैठते, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी, नसीबे ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ऐ भारत ये सर जाए, ये जान जाए, तो समझूंगा ये मरना हयाते याद ना मेरा। धन्यवाद।